साइंटिफिकली प्रूव्ड जो सबूत मिला है वो 9500 साल पुराना, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी 2000 साल 2500 साल पुराना मिल चुका है, और वो भी किसी मंदिर के अंदर जो जमीन में डूबा हुआ है। अब आते हैं इनकी थ्योरी पे। इस थ्योरी के हिसाब से जितने गोरे लोग थे वो सारे आर्य थे, और मज़ेदार बात यह है, इस पे मैंने और थोड़ी सी स्टडी करी तो मुझे कुछ ऑनलाइन किताबें मिली। अभी मैं भाई साहब से चर्चा भी कर रहा था कि मैंने सबसे पुरानी ऑनलाइन किताब जो पढ़ी है वो 1813 में प्रिंट हुई थी। हमारे यहाँ जो संस्कृत का ट्रांसलेशन करा है अंग्रेजों ने, और कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें मिशनरीज का कितना इन्फ्लुएंस था। आप खुद अपने कॉमन सेंस से बताइए, और इन्होंने भी लिखा है दासाज एंड दस्यूस। क्या आप दास और दस्यु का एक ही मतलब निकालेंगे? मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, हो सकता है मुझसे ज़्यादा कोई जानता हो संस्कृत, लेकिन इतनी संस्कृत और हिंदी जरूर जानता हूं कि दास और दस्यु एक नहीं होते हैं। लेकिन इसमें उस काबिल व्यक्ति ने लिखा है। दास और दस्यु का मिस इंटरप्रिटेशन वॉज इंटेंशनल, जानबूझ के करा गया है। और इस थ्योरी को अगर माने तो सारे ब्राह्मण गोरे होते हैं और सारे गैर ब्राह्मण जो हैं वो काले होते हैं। अब ये सिचुएशन आज हो, आज से 200 साल पहले हो, 500 साल पहले हो, मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क होगा, क्योंकि डीएनए ने, पैटर्न ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आज से 500 साल पहले सारे ब्राह्मण गोरे होते थे और सारे गैर ब्राह्मण जो हैं वो काले होते थे। बट ये लिखा है, आपके सामने है, किताब मैंने पढ़ के दिखाई है। एक और दिखाता हूं मैं सबूत। ये थोड़ा लंबा है, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, बाकी हिंदी में बता दूंगा। As is well known, Shivaji, after having established a Hindu independent kingdom in the western part of Maharashtra, thought of proclaiming himself as a king by having his coronation performed. It was felt that Shivaji and his friends were that the coronation ceremony, if it was at all to be at any value, must be performed according to Vedic rites. But in carrying out his wishes, Shivaji found himself faced with the many difficulties. He found that whether his coronation would be performed with the Vedic rites dependent entirely on the Brahmins. Nobody from religious point of view qualified to perform the ceremony except Brahmins. Secondly, he found that such a ceremony could be performed unless it was proved that he was a Kshatriya. There was a third difficulty, namely that, अब ये important point है, देखिए, there was a third difficulty, namely that even if he was found to be a Kshatriya, he was past the age of Upnayan, and without Upnayan there could be no coronation. And third difficulty was a minor one, for which it could be got over by performance of Vratya Stoma ceremony. First difficulty was greatest stumbling block, as it is related to Shivaji's status. Question was that if he was a Kshatriya, if this could be got over, rest of that was easy. Shivaji's claim that he was a Kshatriya was opposed by many. His principal opponents were Brahmins, who were led by his own Prime Minister Moropant Pingle. Unfortunately for Shivaji, his Maratha Sardar had refused to give him a social precedence and had ranged themselves against him. In their view, अब देखिए लाइन सुनिए, in their view he was a Shudra, and Shivaji's claim was also direct in conflict with the well-established thesis long insisted upon that by the Brahmins, that there was no Kshatriya in Kali age, that means Kali Yuga. Shivaji was living in Kali Yuga. Obviously he could not be a Kshatriya. This objection to his claim to the status of Kshatriya was further strengthened by the non-performance. कलयुग में क्षत्रिय नहीं थे। भगवान जाने महाराणा प्रताप कौन से युग में थे, क्या थे,
पृथ्वीराज चौहान शायद हो सकता है सतयुग में रहे हों, त्रेता युग में रहे हों। कोई क्षत्रिय है यहाँ पे बाय द वे? है कोई क्षत्रिय जो? हाँ, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये किताब आपकी एग्जिस्टेंस पे सवाल लगा रही है कि साहब परशुराम ने तो 21 बार पृथ्वी क्षत्रियों से खाली कर दी थी, तो कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं कलयुग में। जी, ये आपकी व्याख्या है। एक अमेरिका से पढ़ा लिखा पीएचडी करा हुआ व्यक्ति में इतनी बुद्धि क्या थी क्या नहीं थी, वो थी। देखिए होता क्या है, जब कोई घटना होती है तो उसके दो लोग होते हैं पक्ष प्रभावित होने वाले। कुछ फेवरेबल होते हैं, जिनको उसका लाभ मिलता है वो उसका समर्थन करते हैं, जो उसका लाभ नहीं मिलता है वो समर्थन नहीं करते हैं। बाय द वे, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करना भूल गया था, सॉरी। इसमें यह कहा गया है कि शिवाजी और उनके साथी चाहते थे कि उनका राज सिंहासन कराया जाए, वो राज्यारोहण कराया जाए, राज्याभिषेक कराया जाए, और उसके पीछे कई राजनीतिक कारण थे। समस्या ये थी कि वो राज्याभिषेक जो है वो कराया जाए किसी ब्राह्मण के ही द्वारा होगा। अब दिक्कत ये थी कि ब्राह्मण उनको क्षत्रिय मानते नहीं थे और उनकी नज़र में वो शूद्र थे। बाय द वे, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों को जानकारी है क्या नहीं है, यादव भी राज परिवार के होते हैं और जीजाबाई जो हैं वो देवनगिर के यादव परिवार की थी। तो उनको क्षत्रिय मानने पे विवाद था। तो ये अंबेडकर की ये चीज़ मैंने यहाँ पढ़ी, तो विवाद था, उस पर वो सब चल रहा था। कुछ लोग उनके जो थे राजनीतिक तौर पे, ब्राह्मणों में कुछ लोगों ने विरोध करा था। किन्ने करा था मैं उस पर भी आता हूँ। फिर मैंने क्या करा, एक किताब बहुत मुश्किल से ढूंढी, किसी से पूछ पाछ के ऐसे करके कुछ ढूंढी, तो वो शिवाजी का जिन्होंने राज्याभिषेक किया था, गागा भट्ट, बहुत काबिल ब्राह्मण थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, 18 उपनिषद पे उनका अधिकार था, काशी के ब्राह्मण थे, उनको बुलाया गया था और वो काशी से राज्याभिषेक करने इसलिए गए थे क्योंकि उनको शिवाजी से बड़ी उम्मीदें थी। और वहाँ जाके उन्होंने सब पक्षों की दलीलें सुनी। तो फिर उस किताब में मराठा राजनीति का जिक्र भी किया गया। प्रॉब्लम क्या थी कि भोंसले अगर कोई राजा बन जाता है, राज्यारोहण हो जाता है, तो बाकी मराठों को लगने लगा कि उनका प्रभाव रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो उन्होंने बजाय डायरेक्ट वो करने के, जो उनके अपने छत्र छाया में ग्रुप था एक ब्राह्मणों का, उनके जरिए ये सब दुनिया भर की अफवाहें फैलवानी शुरू करी। तो गागा भट्ट की संस्कृत में किताब है जिसको बिसेन करके कुछ है, उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया है। जब उस किताब का अध्ययन करा तब समझ में ये आया कि एक्चुअली वो जो वर्ग था वो दोनों से नाराज था, शिवाजी से भी नाराज था और गागा भट्ट से भी नाराज था। क्यों नाराज था? जब ये इतने लंबे सफ़र के बाद गए, और ऐसा तो था नहीं कि हाल राज्य तिलक हुआ था। बाय द वे, शिवाजी का राज्याभिषेक बहुत बड़े लेवल पे हुआ था, कई हजार ब्राह्मण सपरिवार, टोटल 50,000 की स्ट्रेंथ उनकी हो गई थी, और कई दिन मतलब हफ्तों महीनों खाना पीना समारोह वो सब चलते रहे थे। तो इसी दौरान क्या हुआ कि चूंकि इतने काबिल ब्राह्मण हैं, काशी से आए हैं, तो शिवाजी ने उनको एक जिम्मेदारी दी थी। उस समय कोंकण ब्राह्मणों और सारस्वत ब्राह्मणों में कुछ विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने की। तो खैर वो अपनी जो भी ब्राह्मणों की पंचायत बैठी होगी, कोंकण वालों ने अपनी बात कही, इन्होंने अपनी बात कही, शास्त्र रेफर करे गए, जो करे गए, उसमें उन्होंने उसका फैसला सुना दिया। अब चूंकि शिवाजी ने ये पहले से वचन ले लिया था कि भाई जो वो फैसला करेंगे आपको मानना पड़ेगा, वो माना। लेकिन उसमें एक वर्ग असंतुष्ट रहा जिसका काम ये था ये अफवाहें फैलाना। ये किताब भी किसी अंग्रेज की ट्रांसलेट करी हुई है, वो किसी विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति ने नहीं करी है, किसी आरएसएस के ने नहीं करी, किसी बीएचपी के ने नहीं करी।
किसी ने नहीं करी है। बेसेन की करी हुई है, गागा भट्ट की लिखी हुई किताब है, संस्कृत में थी, ये है। तो ये दूसरे समाज सुधारक की सच्चाई आपको बता रहे हैं। अब इन दो, या पेरियार को भी ले लेते हैं, इस तरीके के व्यक्ति के बारे में ये मायने नहीं रखता है कि संभाजी भिड़े ने क्या कहा या अनुराग जौहरी के उनको लेके क्या विचार है। सुभाष चंद्र बोस पे विश्वास करेंगे ना आप लोग कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? देखते हैं सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है। द इंडियन स्ट्रगल, आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। देखते हैं उन्होंने क्या कहा इनके बारे में। थोड़े से विचार जान लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के लोगों के बारे में। और बाय द वे ये किताब उन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी है, जिस डेट से लिखना शुरू कर गए ऐसे करके। तो ये उस समय के विचार हैं जब उनने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा करके वो अध्यक्ष नहीं बने थे। उससे पहले जब वो इंग्लैंड से ICS वगैरह रिजाइन करके लौटे हैं, वहाँ के फेज में उन्होंने लिखा है। मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ उनकी, पहले तो गांधी के बारे में, फिर हम अम्बेडकर पे वापस आएंगे। द लीडर ऑफ द कांग्रेस इज महात्मा गांधी। कांग्रेस के नेता जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। हु इज ए वर्चुअल डिक्टेटर, जो एक तरीके से तानाशाह है। The working committee since 1929 has been elected according to his dictation, and no one can find a place in that committee who is not thoroughly submissive to him and his policy. जो 1929 में वर्किंग कमेटी उन्होंने बनाई है, ये सुभाष चंद्र बोस के 10 अध्यक्ष बनने से 10 साल पहले, 9 साल पहले क्या है ये। जो वर्किंग कमेटी उन्होंने बनाई है वो उनकी मनमर्जी से बनी है, जिसको उन्होंने बताया उसको रखा गया है। और इसमें उन्हीं लोगों को जगह मिली है जो